باپ کے پیٹ میں بھیجا، باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ میں بھیجا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا۔ یہ اتنے سفر کر کے انسان نکلا تو ہر دنیا سے، ہر کائنات سے نکلتے وقت وہ ڈرتا ہی رہا۔ عالم ارواح سے ڈر کے نکلا کہ باپ کی پیٹ میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، باپ کی پیٹ سے نکلا ماں کے پیٹ میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں آیا تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، رحم مادر میں رہنا چاہتا تھا۔ ماں کے پیٹ نے اس کو دھکیل دھکیل کر کے نکالا۔ جب وہ دنیا میں آیا تو دنیا دیکھا شفق کا جمال، افق کی سرخی، بلبل کا ترنم، چڑیوں کی چہک، تتلیوں کا باغپن، یہ دریا، یہ سمندر، ماں کا پیار، بہنوں کی شفقتیں، جھولا دینا، دادی کا پیار، دادا کی محبتیں، سب دیکھا۔ اس کے اندر کاروبار دیکھا، بنگلے دیکھے، گاڑیاں دیکھی، حسن دیکھا، جمال دیکھا، سب دیکھا۔ اب آدمی جیسے ماں کے پیٹ کو سب کچھ سمجھ رہا تھا ویسے دنیا کو سب سمجھتا ہے، اور کراہت کرتا ہے، یار یہ قبر میں کیا رکھا ہے، یہ قبر میں کیا رکھا ہے، یہ قبر میں کیا رکھا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں رہ کر دنیا سے نفرت کرتا تھا، یہ دنیا میں کیا رکھا ہے، یہ دنیا میں کیا رکھا ہے، کیونکہ دنیا دیکھا نہیں تھا تو کہتا تھا دنیا میں کیا رکھا ہے۔ ایسے ہی قبر دیکھا نہیں ہے تو سوچتا ہے یہ قبر میں کیا رکھا ہے۔ لیکن نادان، یہ تیری دنیا قبر کی وسعت کے سامنے اتنی چھوٹی ہے جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے۔ جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے ویسے قبر کے سامنے یہ دنیا ماں کے پیٹ کی طرح چھوٹی ہے۔ لیکن یؤمنون بالغیب، وہاں تو دیکھا نہیں نا، اس لیے غیب پہ ایمان لاؤ۔ اور یہ یاد رکھو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے جنازے میں گیا، میت میں گیا، جب میں اس کی اینٹ لگا رہا تھا، اس کی اینٹ لگا رہا تھا، بلکہ کب، یہ بھی بڑی بات ہے، فرمایا کہ وہ جو تھا میرا بھتیجا تھا، بزرگ اللہ کے ولی کہتے ہیں میرا بھتیجا تھا، اس کا انتقال ہوا۔ موت کے وقت میں گیا تو میں نے کہا نادان، غفلت میں زندگی تو نے گزار دی، کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ یہ بھی بات یاد رکھنا، کچھ لوگوں کو نیکیوں پہ بڑا بھروسہ ہے، نیکیوں پہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہاں، نیکیوں پہ ناز نہ کرو، نیکی کرو اس پہ ناز نہ کرو، ناز تو اللہ پہ کرو، اس کے رسول پہ کرو، اس کے کرم پہ کرو۔ عمل سے جنت نہیں ملے گی، خدا کے کرم سے ملے گی، لیکن اللہ کے کرم کی شکل عمل ہے، عمل کے ذریعے اس کے کرم تک پہنچ سکتے، اس کی رحمت تک پہنچ سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک نیکوں کے قریب اللہ کی رحمت ہے۔ نیک عمل کرو گے تو رحمت ملے گی، اس کی رحمت سے جنت ملے گی۔ لیکن سنیے، وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے اپنے بھتیجے سے کہا زندگی غفلت میں گزار دی، اب کیا سوچتا ہے، مر رہا ہے نزا کے عالم میں۔ اس نے کہا چچا جان، اگر میرا معاملہ میری امی کے سپرد کیا جائے تو میری ماں مجھے جہنم میں بھیجے گی کہ جنت میں؟ تو چچا جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا اگر تیری ماں فیصلہ کرے تو وہ تجھے جنت میں بھیجے گی۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا جب ماں کے ہاتھ میں فیصلہ ہو تو وہ جہنم میں نہ ڈالے تو جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ بس اسی گمان کی اللہ نے لاج رکھی، اور یہ کہتے ہوئے وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ بزرگ فرماتے میں اس کی قبر میں اترا، اینٹ لگا رہا تھا، اینٹ لگاتے ہوئے ایک اینٹ کھسک کر کے گری تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں نور ہی نور ہے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو واللہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی گئی تھی۔ یہ مومن کی قبر ہے، یہ مومن کی موت ہے، لیکن ہم ڈرتے موت سے، کیوں؟ یہ جو جتنا معاملہ بیان کیا گیا نا کہ مصیبت ہے، تکلیف ہے، بلا ہے، یہ کس کے لیے؟ جس سے اللہ ناراض ہو۔ لیکن ایک بات اور عرض کر دوں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے، مومن مرے تو بھی اس کو تکلیف ڈالی جاتی ہے، اور کافر مرے تو بھی اس پہ تکلیف ڈالی جاتی ہے۔ تکلیف سب کو ہوتی، تکلیف سب پہ ڈالی جاتی، اتنا یاد رکھنا، اور اتنی تکلیف ڈالی جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے سینے پہ آسمان اور زمین سمیٹ کے رکھ دیے گئے۔ سانس لیتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے، مرتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے سوئی کے ناکے سے سانس لے رہے ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت، ایسا لگتا ہے جیسے پیٹ میں ببول کا درخت ڈال کر کے اس کو کھینچا جا رہا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن مومن پہ بھی تکلیف ڈالی گئی اور کافر پہ بھی ڈالی گئی۔ کافر اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، مومن محسوس نہیں کرتا۔ اب آپ کہیں گے تکلیف دونوں پہ ڈالی جاتی ہے، ایک محسوس کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا، تو ایک آسان زبان میں سمجھ لے، تفسیر سورہ یوسف اٹھائیں، آپ نے سنا ہوگا جب زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا کو تانا دیا کہ تو بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک لڑکے سے، ایک غلام سے پیار کرتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو زلیخا نے کیا کہا
क्या तुमने मेरे यूसुफ को देखा है? उन्होंने कहा नहीं। कहा एक बार देखो फिर ताना देना, एक बार देखो फिर ताना देना कि मेरा यूसुफ कैसा है। तो उन्होंने हजरत यूसुफ से कहा, यूसुफ तुम नकाब ओढ़ के आना, जब मैं कहूंगी नकाब उठाना। और सहेलियों को उन्होंने खाना खिलाया और कुर्सियों पे बिठाया और उनके हाथों में एक एक फल दिया और एक छुरी दी। कहा जब तुम मेरे यूसुफ को देखना तो तुमने फल पे छुरी चलाना। आपने सुन रखा है, बहुत तफसील से आपने सुन रखा होगा, बार बार सुना होगा। फिर क्या हुआ, फल यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखते वक्त काटने की शर्त लगाई, हाथ में छुरी। सहेलियों को कहा कि जब यूसुफ देखो तो फल पे छुरी चलाओ, और ऐसे ही हुआ, उन्होंने फल पे छुरी चलाया। हुस्न यूसुफ देखा, फल काटने की बजाय क्या काटा, उंगलियां। उंगलियां कटी तो दर्द हुआ, क्यों? हुस्न यूसुफ सामने था। और उंगली कटती है तो दर्द होता है, लेकिन हुआ दर्द मगर महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हुस्न यूसुफ सामने था। तो अरे नादान, उंगली कटे और हुस्न यूसुफ सामने हो तो दर्द महसूस नहीं होता। तो मोमिन पे भी दर्द डाला जाता है, लेकिन वहां यूसुफ होते हैं जहां उंगलियां कट रही थी, और यहां जाने यूसुफ मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा बेनकाब होता है। हुस्न यूसुफ हो तो उंगली कटने का दर्द नहीं होता, और अगर हुस्न मुस्तफा है तो मौत आने का दर्द कैसे हो सकता है? इसीलिए तो मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को मेरे हुस्न का आधा अता किया। तो जहां आधा हुस्न हो वहां उंगली कटने का दर्द नहीं, जहां हुस्न मुजस्सम हो तो वहां मौत की तकलीफ का दर्द कैसे हो सकता है? इसलिए मोमिन को मौत के वक्त रसूलुल्लाह का दीदार कराया जाए। इतनी खूबसूरत है मोमिन की मौत, लेकिन शर्त है मरे तो कोई मोमिन मरे। इसीलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमुतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, और तुम न मरना, तुम न मरना किस हालत में? मगर कि तुम मुसलमान हो। यानी जब तुम्हें मौत आए तो ईमान की हालत में आए। ईमान की हालत में जो मौत आती है उसका जो मजा है, वल्लाह इतना बता दूं कि जन्नत में जब लोग चले जाएंगे तो उस वक्त अहले ईमान मोमिनीन जिनको मरते वक्त मजा आया था, वो कहेंगे मरते वक्त जो मजा आया था वो मजा जन्नत की नेमतों में भी नहीं आता। ये है मोमिन की मौत। लेकिन अफसोस कि हम मोमिन बस मोमिन रहें, और याद रखिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ईमान पे खात्मा करे। ये आसान नहीं है। अगर कोई वली भी हो जाए, वली बनने के बाद भी खतरा रहता है ईमान छिन जाने का। बहुत से ऐसे औलिया की फहरिस्त है कि जिनका ईमान छिन गया। ईमान किसका मरते वक्त छिना जाता है उस पर भी इशारा दे दूं। नंबर 1, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 2, जो लोगों को हकीर समझते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 3, जो गुस्ल जनाबत में देर करते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 4, जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 5, जो सिला रहमी नहीं करते, अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक नहीं करते, डर है कि उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 6, जो आलिम रब्बानी की तौहीन करते हैं, उनका एहतराम नहीं करते, उनको हकीर समझते हैं, डर है कि उनका ईमान मरते वक्त छीना जाएगा। नंबर 7, जो लोग इस्लाम में बूढ़े हो जाएं, लोग उनको हकीर समझते हैं, डर है कि उनका ईमान मरते वक्त छीना जाएगा। याद रखो, और भी तफसीलात है, लेकिन ये चीज मैंने सरसरी तौर पे फहरिस्त आपके सामने पेश कर दी। अगर ईमान पर दुनिया से जाना है तो इन चीजों का ख्याल रखो। और सबसे बड़ी चीज सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करते, मुझे डर है कि जब वो मरेंगे तो मरते वक्त तो उनका ईमान छीना जाएगा। इसलिए अपने ईमान पे खात्मे की फिक्र करो, बाकी सारा मामला अल्लाह रसूल पे छोड़ दो। खैर ही खैर इंशाअल्लाह। जितने मजे हमारे हम सुन्नियों के
کے ہیں उतने मजे क़यामत में किसी के नहीं। क्यों? इसलिए कि सद शुक्र हस्तें कि मियाने दो करीम, कि हम दो करीमों के दरमियान है। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बन आई है। हजरत उस्ताद ज़मन फरमाते हैं सरे हश्र आसी मज़े ले रहे हैं, सरे हश्र आसी मज़े ले रहे हैं। क्यों मज़े ले रहे हैं? शफाअत किसी की है, जन्नत किसी की, शफाअत किसी की है, जन्नत किसी की, और मैं उनके दर का भिखारी हूँ। फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। तो हुजूर से वफा कीजिए, ईमान पर खात्मे की फिक्र कीजिए। इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं जितने वलियों से मिला, मैं एक ही तमन्ना लोगों से दुआ करवाता रहा कि दुआ करे कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। गौसे पाक फरमाते हैं किसी ने आपसे पूछा ईद के दिन भी आप रोते नजर आते हैं, फरमाते अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर होगा। इसलिए ईमान पर खात्मे की फिक्र करें, हर दुआ का हिस्सा बना ले कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। कितना खुशनसीब है जिसे दुनिया कारी रियाजुद्दीन कहती है कि गए तो ईमान पर गए, नाते रसूल का सिला क्या मिला, अल्लाह व रसूल से वफा का सिला क्या मिला, कि दुनिया से गए तो ईमान पर गए, और ईमान में भी वो भी शहादत की मौत। जो हालत सफ़र में हादसे की मौत मरे तो उसको कहते हैं कि वो शहादत की मौत मरता है। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र में भी थे, मुसाफिर भी थे और घर से बहुत दूर थे। ये भी आपको बता दो मुसलमानों कि ईमान पर जिसे हम खात्मा बिलखैर कहते हैं ना, उसमें लोगों की एक कजी है। खात्मा बिलखैर का मतलब लोग ये समझते हैं कि ईमान पर मरे ये खात्मा बिलखैर। यकीनन ये बिलखैर तो है लेकिन मुकम्मल बिलखैर नहीं है, ये भी सुन लें। ईमान पे सिर्फ मर जाना मुकम्मल बिलखैर नहीं है। मुकम्मल खात्मा बिलखैर उसको कहते हैं कि ईमान पर भी मरे और गुनाहों में ना मरे, गफलत में ना मरे, ये मुकम्मल खात्मा बिलखैर है। इसलिए दुनिया की धुन से बाहर निकलो, क्योंकि आदमी जिस धुन को लेकर दुनिया में रहता है, मरते वक्त उसके ज़हन में वही सारा मामला आता है। हज़रत इमाम सुयूती लिखते हैं कि एक बंदा मर रहा था तो लोग उसको कलमे की तलकीन कर रहे थे, कलमा पढ़ कलमा। वो क्या कहता था? हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, हम्माम वाली कितनी अच्छी थी। हम तो उसके घर वालों से लोगों ने पूछा भाई ये मरते वक्त में कहता है हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, तो ये हम्माम का क्या मामला है? तो कहा गया कि एक ये हम्माम चलाता था उस दौर में, जैसे आज के दौर में लोग कलमे वगैरह कुछ मामला चलाते हैं, उस दौर में हमाम होते थे, लोग गुसल करने उसमें आते थे, लोग उसका पैसा लेते थे। घर घर गुसल खाने नहीं थे तो वो ये हुआ कि एक औरत आई एड्रेस पूछते हुए, तो उसने इसको हमाम में दाखिल कर लिया और कहा कि तू उसका फुला का पता पूछ रही है जबकि तेरा हुस्न मुझे भा गया, मैं तेरे साथ जिना करना चाहता हूँ। उसने कहा तू मेरे साथ क्या करना चाहता है? मैं तेरे साथ जिना करना चाहती हूँ, लेकिन एक बात है कि मुझे भूख लगी है, खाली पेट जिना का मजा क्या आएगा, खाना ला ताकि खाकर पेट भर करके जब बदकारी करेंगे तो पूरा पूरा मजा आएगा। वो उसके हुस्न में ऐसा पागल हुआ कि वो उसको समझ ना सका और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए हीला किया, ये खाना लाने गए हमाम से और वो भाग गई वहां से। तो वो उसके दिलो दिमाग के अंदर एक तसव्वुर उस औरत का रहता था, तो मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलेमा नहीं आया बल्कि हम्माम वाली आई। इमाम सुयूती फरमाते एक वक्त एक शख्स मर रहा था तो कहता था लीमू इतने का दूंगा और इतने का दूंगा और इतने का दूंगा। तो लोगों ने कहा इसकी ज़बान पे कलमा क्यों नहीं आता? कहा ये लीमू का व्यापार करता था, ये अल्लाह की धुन छोड़कर हमेशा ये कारोबारी की धुन में लगा रहता था। तो मुसलमानों, कारोबार भी करो, बिजनेस भी करो, रिश्तेदारी भी करो, लेकिन दिल में अल्लाह रसूल का जलवा बसा रहना चाहिए, क्योंकि दिलो दिमाग में जो बसेगा मरते वक्त वही ज़बान पर आएगा। इसलिए हर वक्त ज़बान पे कलमा तैयबा हो, दुरूद शरीफ हो, ताकि दुनिया से जाए तो कलमा पढ़ते दुरूद शरीफ पढ़ते जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबसे पहले मुझ गुनहगार पे रहम फरमाए, आप सब पर रहम फरमाए, अल्लाह हमें ईमान पर रखे और खैर के साथ, मुकम्मल खैर के साथ अल्लाह शहादत और इज्जत की मौत हम सबको मदीने मुनव्वरा में अता फरमाए, 2 गज ज़मीन महबूब के कदमों में अता फरमाए। अल्लाह हमारा हश्र नश्र अपने महबूबों के कदमों में फरमाए, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। कारी रियाजुद्दीन और मरहूम जनाब उमर साहब जो हमारे नवाज भाई के मामू हैं, उनके इसाले सवाब के लिए हज़रत काफ़ी मुरादाबादी का एक कलाम पेश करके गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। काफ़ी कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा,
पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और कहते हैं नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कलाम हजरत काफी मुरादाबादी ने शहादत के वक्त जब उनको फांसी दी जा रही थी तब लिखा था। और जब लिखा था ना तो अंग्रेजों ने पूछा था काफी तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो आपने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं हमेशा हुजूर की नात लिखता रहा, मौत से पहले भी मैं हुजूर की नात लिखूं। कारी रियाजुद्दीन की रूह की नजर इसलिए कर रहा हूं कि वो भी नात खाते, ये भी नात गो थे काफी मुरादाबादी। तो काफी की नीयत ये थी कि मैं मरते मरते भी नात लिखूं, तो इन्होंने नात लिखी। और जब नात लिखी और पढ़ के सुनाया तो अंग्रेजों को गुस्सा आया, तो कहा कि माज़अल्लाह, उस बदबख्तों ने कहा इस बुढ़े को ऐसे नहीं मारेंगे, इसको ऐसे नहीं मारेंगे, इसको इबरतनाक सजा देंगे। कैसी सजा देंगे? नात खां की मौत देखो, नात बयान करने वालों की मौत देखो, आशिकों की मौत देखो। अंग्रेजों ने कहा पहले सिर्फ फांसी देना था, अब फांसी नहीं देंगे। कोयले की इस्तरी ली और उसमें कोयले भरे दहकाए और कहा इसके बदन पे इस्तरी चला दो। देखो सुम्मस्तकामु का मतलब देखो, उसकी अमली तफसीर देखो। लोग चंद सिक्कों के एवज ईमान का सौदा करते हैं। काफी मुरादाबादी पर जब इस्तरी चलाई गई, बदन पर इस्तरी चलाई गई, तो काफी कहते थे अगिस्ना या रसूल अल्लाह, हमारी मदद करें या रसूल। तो जब इस्तरी चलाई जा रही थी काफी रो रहे थे, तब आलमे बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। तो काफी रो पड़े, या रसूल अल्लाह मैंने देर कर दी, मुझे पहले पता चलता कि इस तरी चलवाने से आपका दीदार होता है तो मैं ये काम और जल्दी से कर लेता। ये है मोमिन की मौत। सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये हकीकत है कि हुजूर का दीदार होता है। जो जितना यकीन रखेगा उसको उतनी नेमतें मिलेगी। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए और हम सब पर करम फरमाए।